Everyone, welcome back to my channel. Monica Jain this side. Today we'll be discussing about your CA Intermediate September 2025 Group 2 one day before exam strategy. Well, starting with तीनों subjects में तुमको एक 1.5 days से ज़्यादा की हॉलीडे नहीं मिलने लीव नहीं मिलने वाली है. So starting with कि हमको उस accordingly सब कुछ prepare करना पड़ेगा. You'll be having your exam on 11, 13 and 15. So likewise, first will be your course, second will be your audit, third will be your audit, FM and SM. Now अब ऐसा होगा cost, once you're done with the text you have to appear for the cost, and cost in that case सबसे पहले तो cost का, audit का, FM का, means all three group 2 के जो subjects हैं उनका ABC analysis for the exam purpose, like which chapters you have to prioritize first. It's already uploaded on the group. The link of the Telegram channel, the link of the Telegram channel is in the description below. You can check out that link, and that link you can get these 3 other subjects ABC analysis for the exam purpose also. Again, I'm repeating, ABC analysis is never for the selective studies. It's always for the smart studies, that you can prioritize those chapters which are important first, and then you can pick up those chapters which are not that much scoring and important, but you have to cover everything, because you know we can never take chance with ICI. It's sometimes unpredictable, sometimes too much predictable, so we have to be prepared for every sort of situation. Now starting with your one day before exam strategy for the cost management, you have to do this after coming back from your text exam. You have to start preparing after taking 1.5 hour or 1 hour break, and then you have to pick up those chapters which are your very, 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 very strong, and those are also important, because on that day you are slightly exhausted. So if you will cover those chapters which are good, which are strong, तो तुमको ऐसा लगेगा I've done something productive also, and I've done something with very much confidence also. तो उस दिन तुम्हारा confidence lose नहीं होगा, क्योंकि confidence uphold करने के लिए next day तुमको चाहिए वो चीज़ कि यार will power तो हो दूसरे दिन अच्छे से पढ़ने की. Coming down to अब दूसरे दिन in the morning, from the morning you have to start those chapters which are important but you are not performing good in those chapter. तो अब क्या होगा ना, दोपहर तक, like till the afternoon, you will be able to cover everything that is important. Strong थी वो भी कर ली कल, आज हमने वो कर ली जो हमारी थोड़ी weak है. Now you will start with the B category chapters, like जो तुम्हारे अच्छे ना होना, like they are mediocre but वो इतना B category, like they are not that much scoring. And once you're done with those chapters, then pick up the C category chapters. Now about the same, I have very important tips and tricks for those chapters जिनमें मैं बहुत ज़्यादा लैक करती थी, जो मैंने यूज़ करी थी मेरे एग्जाम के टाइम पे. वॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं, आई मेड द चार्ट. आई ऑलवेज टोल्ड वेन एवर यू फील लाइक समथिंग इज़ हार्ड टू यू नो सिंक इन योर माइंड, उसका ना चार्ट बना लिया करो, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना लिया करो, बिकॉज योर माइंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेटर देन दोज विच आर मेयरली रिटन लाइक टेक्स्ट. ओके, सो आई डिड दैट, तो तुम भी यही कर लेना. So next day, on the day of exam, in the morning, you have to do this, that you have to pick up those charts, you have to go through them, like, and once in keep going through them in break of hours, like in intervals of hours. Like you have gone through this time, and then after an hour pick it up again and go through it, because ऐसा होता ना, continuously if you will go through something in the morning, so that will get settled down in your brain. और तुमको ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज फॉर्मूलाज इतने रहते हैं, वी हैव टू लर्न वट एवर लॉजिक अप्लाई करके, और अंडरस्टैंडिंग कितनी भी डेवलप करके, कभी कभी कुछ तो ऐसे होते हैं जब वी हैव टू राउट देम, बिकॉज नहीं हो रहा है वो, इतने सारे एक साथ लेके चलना है समटाइम्स टफ टू कैरी. सो टॉकिंग अबाउट द सेम. और फिर बात आई जो तुम्हारी थ्योरी जो तुमने कवर करी है इन द नाइट येस्टरडे, उस थ्योरी को बस एक बार गो थ्रू कर देना. और उस थ्योरी में से भी जो बहुत ज़्यादा तुमने RTPs MTP सॉल्व करते टाइम रिकरिंग चीज़ें नोटिस करी है ना, उनको वापस से पिकअप करना. बिकॉज क्या होता है ना, थ्योरी में जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, हमको वो डील करना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन आर 100% फॉर दी प्रैक्टिकल. अब ऐसा कभी होता है कि इवन इफ प्रैक्टिकल गो अगेंस्ट अस, देयर इज थ्योरी स्टैंडिंग बिहाइंड. तो थ्योरी के लिए बस इतना करना है कि रिकरिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करने हैं, इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग. बिकॉज आई वॉज समवन हु यूज टू डू दिस, की थ्योरी बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके ऑन द एग्जाम्स डे रेफर करती थी. बट यू शुड नॉट डू इफ़ यू आर जेन्युइनली स्टूडेंट, एंड यू शुड नॉट डू
फॉर द केस अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है एग्जैक्टली तो सितंबर के अटेम्प्ट के लिए भी तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए. एक बार तो थ्योरी को एक दिन दे के कवर कर लो, क्योंकि कॉस्ट की कभी कभी थ्योरी तुमको ना उन अनसर्टेन सिचुएशन से बचा लेती है वेर इवन प्रैक्टिकल इज नॉट हेल्पिंग यू. ओके, सो दिस वॉज योर कॉस्ट स्ट्रैटेजी. Coming down to your second subject, audit strategy. Now audit, again I'm saying, once you're done with the cost exam, come back home, take 1 or 2 hour rest and then get back to studies, and this time you will start with your entities. क्यों? Entities and items of financial statement. ये दो चैप्टर ऐसे हैं ना, बार बार आते तो है, पर ये दो चैप्टर जैसे मैं हूँ, I personally have taken lectures of Shivam Keshwani sir, so he even uploaded a kind of video on 2 hours 3 hours की about the items of financial statement for the question practice. That was not even direct chapter explained totally by him during my attempt. So what I had thing in my mind कि even if a teacher is giving us a smart approach to deal with a chapter and that is recurring, but that's not even hard to deal because उसमें बहुत सारी चीज़ें accounts वगैरह की भी आ जाती हैं और law की भी आ जाती हैं. तो आई थॉट लेट मी ऑल्सो डील विद इट स्मार्टली. मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा था जैसे सर ने बताया थी अप्रोच. सो व्हेन आई पिक्ड अप फॉर द रिविजन इन एग्जाम 1.5 days में, सो व्हाट आई डिड ऑन द सेम डे आई केम बैक फ्रॉम गिविंग एग्जाम द कॉस्ट वन एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ऑडिट. और ऑडिट में मैंने सबसे पहले यही वाला चैप्टर उठाया, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने वो वाले सारे क्वेश्चन गो थ्रू करे जो सर ने मार्क करवाए थे, वो सारे कंसेप्ट गो थ्रू करे जो सर ने मार्क करवाए थे. अबाउट द सेम उनके अभी भी आज भी वो वीडियो अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वॉन्ट टू. तो उसमें ना कंसेप्ट क्रिस्प थे, रिकरिंग कंसेप्ट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर थे, तो मैंने उनको गो थ्रू करा. एक बार मैंने मॉड्यूल रीड नहीं करी थी, लेट मी वेरी क्लियर वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कवर करे थे मोस्टली जितने मुझसे हो सकते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. और अबाउट द सेम फिर एंटिटीज़ में मैंने ए कैटेगरी एंटिटीज़ कवर करी थी, होटल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एंटिटीज़, NGO, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऐसी कुछ मैंने ये सारे कवर करे थे. मैंने सच में इससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं करा था एंटिटीज़ में, तो मैंने उनको गो थ्रू करा. और फिर मैंने, मेरे पास अगर टाइम बचा था तो मैंने पिकअप करे थे वो चैप्टर्स जो कि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे जो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको कवर करके आई गेट बैक. मॉर्निंग हुई एंड इन द मॉर्निंग आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोज चैप्टर्स जो कि टफ हैं, मेरे अच्छे नहीं हैं. सी, ऐसा मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि जो नेक्स्ट डे होता है उसका मॉर्निंग को तुमको टफ बट इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि सी वैसे भी वो चीज़ें हार्ड टू डील है तुम्हारे लिए, ओके, पर्सनली तुम्हारे लिए. अब तुम और इम्पॉर्टेंट भी हैं, डील तो करना पड़ेगा, बट कैसे करना पड़ेगा? अप्रोच हैज़ टू बी स्मार्ट. मॉर्निंग यू आर फ्रेश, your mind is totally prepared to grab everything new, so at that point of time, no, it becomes easy for absorbing the concepts. So that is why I always recommend this. Coming down, once I was done till evening with all those important things which are tough for me, I came down to again the B category things that are not that much asked, and then I started covering. So basically ऐसे करके I covered my audit, and on the day of exam मैंने audit में ज़्यादा कुछ गो थ्रू नहीं करा था. मैंने अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एंटिटीज़ ही गो थ्रू करे थे, और मेरे जो मतलब टफ और इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट्स हैं उनका एक ऐसे का एक बार मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनवाते थे सर हम लोगों को, वो एक बार गो थ्रू कर दी थी. जो रिविजन 7-8 मिनट के उनके अपलोडेड हैं उनसे जो निकाल के मैंने लिखे थे अपने नोटबुक में. यू कैन डू दैट, क्योंकि क्या रहता है ना, अभी तक किसी ने भी ऑडिट में क्विक रिविजन्स अपलोड नहीं करे. आइदर दे आर सो लॉन्ग, आइदर दे आर नॉट that much relevant, or they don't make sense to us. But those small like chart type revision that he is doing by himself through the, you can actually refer it, it's actually good. I've even myself when I in my first time when I didn't even study from him, I even referred at that time his audit note, मतलब वो जो revisions थे, तो वो 8-8 7-8 मिनट के होते हैं, 15 मिनट मैक्स 20, तो बेस्ट रहते हैं. उनका एक बार पूरा एक छोटा नोटबुक प्रिपेयर कर लो, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम जस्ट गो थ्रू इट फॉर दोज एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट इन वीक ऑफ योर्स. यू विल बी सॉर्टेड. नाउ कमिंग डाउन टू योर थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज FMSM. अब FMSM में तो यू हैव वेरिएशन इन योर ब्रेन, मतलब तुम्हारे लिए तो पहले से एक क्लैरिटी है एग्जाम से आने के बाद. इफ आई एम हैविंग 1.5 डे, 0.5 डे में आई हैव टू कवर SM, नो अदर वे. बट आई डिड नॉट डिड दिस थिंग. वाई? बिकॉज SM वॉज सब्जेक्ट दैट आई नीड टू रिटेन इन माई ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें मैंने लिजिट बहुत ज़्यादा रटा था. बिकॉज SM ऐसी चीज़ें जो समझ सकते हैं, समझ के एब्जॉर्ब हो जाती है, मैं समझ के लिख भी सकती हूँ, बट आई से आस्क फॉर दी लिजिट जो कीवर्ड्स लिखे. अब वो कीवर्ड्स कभी कभी तो कुछ चीज़ें आई विल मिस, दैट इज़ फॉर श्योर. आई एम अ ह्यूमन, आई विल डू मिस्टेक्स, I'll not be able to remember everything.
very properly. So that is why for the FMSM, my approach was simple. I started with FM, practical subject. I'm tired, I'm frustrated, I'm exhausted basically. So I need to start with something that give me kick, like it gives me boost कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. So I started with FM. उसमें भी वो चैप्टर्स अगेन जो मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, इनसे शुरू करा. आई कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 chapters. Like how, what was my approach? Gone through only the notes and questions of module, and those my important LDR marked questions. That's it. फिर नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड विद 2 chapter ऑफ FM जो मेरे थोड़े से स्लाइटली टफ थे, एंड आई पिक्ड देम, और इवनिंग तक लग जाता है. इट्स वेरी नॉर्मल, सेम अप्रोच रहती है, इवनिंग तक लग जाता है टाइम. फिर आई पिक्ड अप फ्रॉम द इवनिंग SM, और SM में भी आई स्टार्टेड विद द chapters from back, like from the 5th chapter. I did this because I had that thing in my mind that I will do this. I mean, this was psychological to me that ki, if I'll start from back and go till first, so I'll have everything flipped and crisp in my mind, covered and properly arranged. That thing was there. You can even start on your comfort कि तुमको कहाँ से शुरू करना है. First chapter से you can do that. Pick up the SM, and in SM सिर्फ मॉड्यूल उठानी है. If you are not gone through SM, you have your own teacher. उनके नोट्स में भी हेडिंग्स बेस्ड, ऑब्वियसली इतना तो हर टीचर बताते हैं. हेडिंग्स पे फोकस करना, हेडिंग्स को रिवाइज करना, निमोनिक्स मत बनाना. लेट मी वेरी क्लियर, इतने सारे जो निमोनिक्स बनाने की आदत है ना हमारी, जो आई मीन टेल मी वन थिंग, वो 3 hours हैं, तुम डरे हुए हो, तुम घबरा रहे हो, तुम कन्फ्यूज्ड हो, तुम्हारा दिमाग भी 100% तुमको उस टाइम वहाँ पे चाहिए. Are you seriously going to push your brain to the end of its level to think of the mnemonics जो तुमने याद करे? कंसेप्ट से याद आ नहीं रहे, पहले निमोनिक्स याद करो, फिर वो निमोनिक्स में क्या है वो याद करो. इतने निमोनिक्स, लाइक यू विल बी कन्फ्यूज्ड यार. इतनी सारी चीज़ें दिमाग में कैसे रख सकते हो? ऑलरेडी लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट सिंपल चलो, समझो. मोस्ट ऑफ द कीवर्ड को याद करने का ट्राई करो. इफ़ इट इज़ लॉन्ग, इफ़ इट इज़ कन्फ्यूजिंग, ट्राई टू LDR इट और मार्क इट फॉर द लास्ट टाइम टू गो थ्रू इट. डू दिस, एंड आई रियली फील लाइक मैंने दोनों तरीके से पढ़ा. आई एम समवन हु कैन गिव यू द बेस्ट रिव्यू फॉर दिस, बिकॉज I have also dependent upon mnemonics for once, and I've also depended myself on proper understanding of concept, going through whole module and learning the SM in a right way with the keywords, inside content understanding and study material. If you're January 2026 student, please don't do this mistake that either of your senior or fellow mate have done. Please read your strategic management from the study material. It's game changing. It did wonder for me, so I'm also recommending the same to you. तो SM को ऐसे डील करना है, स्टार्ट विद विच एवर चैप्टर यू वांट, बिकॉज सारे इक्वल वेटेज के चैप्टर्स हैं. कीवर्ड रिवाइज करो, इनसाइड का मटेरियल को एक बार गो थ्रू कर लो. तुमने नोट्स बनाया तो उनको गो थ्रू कर लो, और इनसाइड के मटेरियल में जो तुम्हारे रीडिंग के टाइम पे मार्क पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू करो. क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है. कंसेप्ट इटसेल्फ इज़ अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस, एंड सिर्फ एक बार LDR क्वेश्चन जो कि यू नो तुमने रिकरिंग से मार्क करे थे, उनको एक बार देख लो बस. जो इंपॉर्टेंट थे, तुमको ज़्यादा न्यू से लगे थे पुराना, जब तुम RTP MTP PYQ प्रैक्टिस कर रहे थे, जस्ट गो थ्रू दैम फॉर वंस एंड यू आर गुड टू गो. ऑन द डे ऑफ एग्जाम, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो सुबह यू हैव टू गो थ्रू दी जितने भी सारे चैप्टर हैं. सबसे पहले रेशियो उठाना, उसके सारे रेशियोज़ को एक बार गो थ्रू कर देना, एंड देन पिकअप दोज चैप्टर्स जिनमें थोड़ा सी भी ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह हैं. उनके तुमने अगर चार्ट बनाए हो पेपर्स पे तो वो गो थ्रू कर लेना, या फिर नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना. मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, विल बी एबल टू गो थ्रू एवरीथिंग प्रॉपरली. एंड देन पिकअप योर SM में जो डायग्राम्स वगैरह हैं, कुछ जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट्स अगेन आई सेड जो तुमने अंडरलाइन करे थे, लर्न नहीं हो रहे थे, उनको गो थ्रू करना. 1-8 घंटा लग जाएगा. 2 hours could also be possible. 4 hours you're better to go, and before going like to the exam center or somewhere you feel like, ratios को एक बार गो थ्रू करते रहना, बट एटलीस्ट गिव योर माइंड ब्रेक फॉर आवर, बिकॉज आई यूज टू डू दिस. क्योंकि इससे कह रहता है क्लैरिटी और सेटल हो जाता है ब्रेन, बिकॉज अचानक से अगर रश में हम सब कुछ करते हैं ना, तो और कन्फ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक मी, प्लीज़ डोंट डू दैट. अदरवाइज यू आर गुड टू गो, यू नो एवरीथिंग, यू आर गोइंग सो गुड. कीप गोइंग, डरने की ज़रूरत नहीं है. सो मेनी ऑफ यू आर मैसेजिंग मी दैट वी आर हैविंग फ्योर, कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है. अरे यार, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, एग्जॉस्ट तो हो ही जाएंगे. टेक एटलीस्ट अ डे ऑफ कुछ घंटों का ब्रेक ले लिया करो.
थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर लिया करो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो. फील लाइक यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट बीइंग पुश्ड टू डू दैट. Enjoy it. No need to be afraid of it. So yeah, this was it. I hope you liked the video. Please subscribe the channel for more such videos. Stay tuned for more such content. And yes, please let me know what else I can help you with in the comment section. And yes, the description of Telegram channel is in the description below for the mock test, for the mentorship, for the guidance, and for any sort of conversation regarding your exams. Kindly find me there. And yes, stay disciplined, stay consistent, and stick to your plan. See you there in the next video.